Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Prayagraj. So let's start with the set number 9 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set is on data interpretation which is based on a concept of averages, and this set I've taken from SimCat. The set says a small institution runs playground in three different villages A, B and C. The maximum capacity of playgroup is 10, 20 and 30 children respectively. Children in the age group 1 to 4 are taken care in one of these playgroup. Once a child attains the age of 5, he or she has to leave the playgroup and takes admission in the primary school. The following graph shows the average age of the children at these three playgroup A, B and C in these year 2016 to 18 when these playgroup were full to capacity. Only 1 year old children took admission in these playgroup. No child left the playgroup in the middle of the term. ठीक है. So but basically said पे क्या बोला हुआ है, there are three different villages. The name of the village is given A, B and C, and they all have a capacity of taking admission. A has a capacity of 10 student, B has a capacity of 20 student and C has a capacity of 30 student. और यहाँ पे 1 से 4 ईयर के बच्चों का एडमिशन हो रहा है, यानी कि 1 साल के कुछ बच्चे हैं, 1 ईयर के कुछ, देर आर किड्स, 2 ईयर के किड्स हैं, 3 ईयर के हैं एंड 4 ईयर के हैं. And if the student attains the age of 5, he or she has to leave the playgroup and join primary schools. ठीक है. ग्राफ जो दिया हुआ है, ग्राफ शो 16 to 18 किसी एक विलेज का एवरेज एज कितनी है. एवरेज एज का मतलब क्या होना चाहिए, सम ऑफ द एज अपॉन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर ईयर फॉर दैट पर्टिकुलर विलेज. तो ये चीज अपने को यहाँ पे करना होगा. ऑल्सो यहाँ पे दो चीजें जिसको हमें ध्यान देना पड़ेगा. पहला, no child left the playground in the middle of the term. There is no one who left the middle in middle. Like if a student have 1 year is मतलब 1 साल वाला बच्चा ही ज्वाइन कर रहा है, so basically वो जब 4 साल का पूरा होगा then only he or she will leave the playgroup until unless कुछ ऐसा इस पे तो लिखा नहीं है, तो we shall be taking this कि वो चारों साल पे कंटिन्यू कर रहा है. And the other thing it is mentioned कि the all the playgrounds are operating on their maximum full capacity when these players were to full to capacity. ठीक है. So basically A is operating full, तो 10 है, B का भी 20 है, C का भी 30 है. चलो एक बार ना क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन पे क्या क्या पूछा हुआ वो देखते हैं, देन लेट्स स्टार्ट डूइंग दी होमवर्क वाला पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं. इन प्ले ग्रुप A in 2016 what was the total number of children. ठीक है, what was the total number of children age 3 year in the 2017. how many children left from these play group in 2014 there are. ठीक है. सो बेसिकली क्वेश्चन से ऑब्जर्व कर लिया कि जो सॉल्यूशन है वो यूनिक बनना चाहिए, बिकॉज बिट्स एंड बाइट्स में सारे नंबर्स पूछा गया कि 2016 में ऐसे कितने लोग थे कि जो 2 साल या 2 साल से कम वाले थे, तो 2017 में 3 साल वाले कितने लोग थे वो हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट. ए के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं. ए में टोटल लोग कितने होने वाले, 10 लोग होने वाले, क्योंकि यहाँ पे इट इज मेंशन इट इज ऑपरेटिंग ऑन इट्स फुल कैपेसिटी एंड द कैपेसिटी इज 10 स्टूडेंट. ठीक है. एंड वो जो 10 लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं. एक 1 ईयर वाले बच्चे हैं जो कि लेट्स से हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि वो ए है, मतलब ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ऑफ 1 ईयर. 2 ईयर वाले हैं वो हैं बी स्टूडेंट है. 3 ईयर वाले हैं वो हैं सी स्टूडेंट एंड डी है जो कि है तुम्हारा 4 ईयर का. ठीक है. तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू अपने को मिली हुई है 10. कैसे, क्योंकि 10 ही बच्चे थे ए के लिए, वो 10 के 10 पूरा फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं. सो इनका जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली जो 4 एलिमेंट्स हैं इसका सम होना चाहिए 20, इनके जो 4 एलिमेंट्स हैं उनका सम होना चाहिए 30. ठीक है. ऑल्सो what should be the sum of their ages. It should be a into 1 plus b into 2 plus c into 3 plus 4 into d. क्योंकि सम ऑफ एजेस है तो बेसिकली नंबर ऑफ पीपल इनटू द एज. 1 ईयर के हैं तो वो 3 लोग हैं तो 3 वाले हो गए. देयर आर 4 पीपल सपोज ऑफ 2 ईयर, तो 4 2 जा 8 एंड उनका सम करके अपॉन अपने को 10 करना होगा एंड द एवरेज वैल्यू इज मेंशन. ठीक है. चलो इसके लिए ना एक टेबल बनाते हैं एंड उसको थोड़ा सा टेबल को रखने से क्या होगा कि चीजें सॉर्टेड हो जाएगी. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल टेबल इन विच 2016, 17 और 18 में ए कैटेगरी के 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर का क्या क्या नंबर है वो अपने को पता चल जाएगा. ठीक है.
चलो लेट्स स्टार्ट विद द ए, एंड ऐसे करके अपने को ब्रेक डाउन करना होगा चारों के लिए, सॉरी तीनों के लिए, ए बी और सी का, और ए बी सी का तीनों ईयर का निकालना पड़ेगा। लेट्स से ए का जो 2016 वाले लोग हैं पहले उसको निकालते हैं, ठीक है। ए का 2016 में कितने लोग होंगे, ए बी सी और डी, इनका सम दिया हुआ है 10, ठीक है। अब इसमें से ए क्या है, ए इज 1 ईयर, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज 1 ईयर, ये क्या है 2 ईयर वाला, ये है 3 ईयर वाला, ये है 4 ईयर वाला, ठीक है। यानी कि इनका जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d, ठीक है। वो क्या बनना चाहिए, वो एवरेज के लिए बना हुआ है 3, तो इसका सम कितना बन जाएगा 30, समझ आना। बिकॉज इसका ये दिया हुआ ना कि अपॉन 10 दिया हुआ था 3, तो मैं ये यहाँ पे ले जाके इसको 30 बना दिया, ठीक है। यानी कि ये अपने को एक इक्वेशन मिल गया ये वाला, कि भाई इसको यूज करके हमने निकाल दिया कि ए बी सी डी का जो सम है, ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d का जो सम है वो होना चाहिए 30, ठीक। ऑल्सो ये भी एक इक्वेशन मिला हुआ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 10, ठीक। अब होगा क्या, 2017 में, 2016 से जब वो 2017 पे जाएंगे तो क्या होगा, जो 1 साल वाला बच्चा है वो 2 साल का हो चुका होगा, ठीक है। यानी कि अब ये जो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्योंकि क्या लिखा था कि एडमिशन कहाँ पे होता है 1 ईयर का, और बीच में कोई भी नहीं छोड़ता है, यानी ये जो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये कंटिन्यू किए होंगे 2017 में भी, और वो 2080 में भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो 3 साल का हो चुका होगा। सिमिलरली यही बी कैटेगरी, यानी जो 2 साल वाला बच्चा उसके लिए भी हम करेंगे, बिकॉज वो 2 साल वाला बच्चा 2017 में 3 साल का हो जाएगा, 2018 में 4 साल का हो जाएगा। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस प्लस क्या आना चाहिए, d आना चाहिए। अब ये d कहां से आया, जरा ये समझते हैं। ये d ऐसे आया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, d को हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, मान लेते हैं कि d तो हट रहा है ना, बिकॉज d इज ऑफ 4 ईयर एज एंड वो बेसिकली 5 ईयर अटेन कर चुका होगा और वो बाहर निकल चुका होगा। तो नेक्स्ट ईयर कौन फॉरवर्ड हो रहा है, वो a प्लस बी प्लस सी ही हो रहे हैं, और इनका जो सम बनाना है वो भी 10 ही बनाना है। मान लेते हैं ये x, उसको भी तो 10 ही बनाना है, और यहाँ पे भी तो वही था, वो 10 ही तो बनाना था। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहने वाली है। बस फर्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये जो d है वो 1 ईयर वाला किड हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूँ इसको मैंने क्या करा। बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे सेट का, इसी से सारी वैल्यूज निकलेंगी। मैं ये कह रहा हूँ फिर से कि ए है जो कि 1 ईयर का किड है, बी है जो 2 ईयर का किड है, सी है जो 3 ईयर का किड है, डी है जो 4 ईयर का किड है, इनका सम दिया गया 10 फॉर कैटेगरी ए, फॉर ए विलेज। अब क्या होगा, 2016 के लिए था, 2016 के लिए। अब 2016 में 17 में क्या होगा, ये ए वाला बच्चा 2 साल का हो चुका है, तो ये तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ये तो बाहर जा नहीं रहा। सिमिलरली ये बी वाला किड भी कंटिन्यू करेगा, क्यों, क्योंकि ये 3 साल का हो चुका है, ये भी रहेगा। प्लस सी वाला बच्चा भी कंटिन्यू करेगा क्योंकि ये 4 साल का हो चुका है, और इनका सम बनाना है 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये डी ही तो आएगा, क्योंकि यही चीज हटा था और ये फिर आ जाएगा। फर्क ये आएगा कि पहले डी यहाँ पे था, अब जो डी है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, ए बी सी डी, एंड अब आगे हो जाएगा, ये जो ए है ये 2 साल वाला हो गया, ये बी है जो 3 साल वाला हो गया, सी है जो 4 साल वाला हो गया, और डी यहाँ पे आ गया। सिमिलरली जब इन 2018 में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब ए वाला जो किड है वो 3 साल का हो चुका होगा, बी वाला किड 4 साल का हो चुका होगा, डी वाला किड जो 1 साल का था पिछले साल, नाउ इट विल बिकम ऑफ 2 ईयर किड। अब फिर से वही है, 10 बनाना है, तो क्या है 10 इस वाले इक्वेशन से निकाल चुके हैं कि ए है बी है डी है, तो कौन बच रहा है, सी है। तो यहाँ पे ये नंबर्स मिल गए, ठीक है। ये वाली चीज समझ आ गई। अब अपने लिए देखो कितना आसान है, क्यों, क्योंकि अपने लिए सारी वैल्यूज वहां पे एवरेज के फॉर्म पे दी हुई है। इट जस्ट वी नीड टू फिगर आउट द वैल्यूज ऑफ एबीसीडी और अपना काम बन जाएगा। वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। मैंने क्या करा हुआ है, तो एक इक्वेशन बनाया था यूजिंग दिस वैल्यू 3 की वैल्यू, जिसमें कि ए की इंटू 1 2b 3c 4d, a प्लस 2b 3c 4d कहां से आया, एक ए नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि 1 ईयर का है तो ए, बी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 2 ईयर का है तो 2b, सी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 3 ईयर के हैं 3c, डी ईयर का स्टूडेंट जो कि 4d। सिमिलरली
जब वो नेक्स्ट ईयर जाएगा तो यहाँ पे चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए वाला कंटिन्यू करेगा, वो 2 साल वाला बच्चा बन जाएगा, वो बन जाएगा 2A। ठीक है, ये 3 वाला बन जाएगा 3B, ये वाला बन जाएगा 4C, और ये D आ जाएगा, ये जो एक ईयर किड वाला वो D आ जाएगा। इनका सम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2.4 का एवरेज दिया हुआ, 2.4 इंटू 10 यानी कि कितना होना चाहिए 24। अब इन दोनों को कंपेयर करा जाए, इन दोनों को इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करने पे क्या मिल रहा है, 2A माइनस ए मिल गया, 3B माइनस 2B मिल गया B, 4C माइनस 3C यानी कि मिल गया C, और D माइनस 4D, D माइनस 4D कितना होता है माइनस 3D, ये कितना बन गया -6। ठीक है, अब क्या था, अपने को एक इक्वेशन ये भी पता था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 10, इसको यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को हम अगर ऐसे लिखते हैं 10 माइनस डी माइनस 3D इज इक्वल टू -6 लिख सकते हैं। ठीक, एंड ये 10 को हम यहाँ ले जाएं तो क्या बन जाएगा, -4D इज इक्वल टू -16, और D की वैल्यू इससे मिल गई 4। ठीक, अब देखो D की वैल्यू 4 मिल गई, क्या करना है अपने को, अपने को D की वैल्यू जहां जहां पे 4 है वहां पे D की वैल्यू को 4 पहले लगा देते हैं। ठीक है, D की वैल्यू अपने को मिल गई है 4, D की वैल्यू मिल गई है 4, D की वैल्यू मिल गई है 4। ठीक है, अब क्या करें, अब एक और इक्वेशन बना लेते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ वैल्यू ऑफ 2018 का भी दे रखा है, उसका एवरेज कितना है 2.2। अब होगा क्या, यही ये वाले जो इक्वेशन है इसी को यूज करते हैं, नीचे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। चलो 2018 की वैल्यू से एक और इक्वेशन बना लेते हैं, ये कितना बन जाएगा, ये जो 2A वाले किट है ये 3 ईयर के ही जो चुका होगा तो इनका बन जाएगा 3A, B वाले जो किट है वो 3 ईयर से या 4 ईयर के हो चुके होंगे तो ये बन जाएंगे 4B, 4C वाले बच्चे जो हैं जो C नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अब वो मैच्योर हो गए और अब हो गए होंगे वो लोग बाहर, तो वो बाहर हो गए, उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट से रिप्लेस हो जाएगा 1 ईयर किट, क्योंकि उनका सम जो है वो 10 अपने को बनाना ही बनाना है, तो ये आ जाएगा C यहाँ पे, एंड ये जो डी ईयर वाले किट है ये क्या हो जाएंगे 2D, क्योंकि ये अब 2 साल के हो जाएंगे, और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 2.2, 2.2 का मतलब 2.2 इंटू 10 हो जाएगा 22। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे ये मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, अब हम थोड़ा यहाँ पे जगह ऊपर ले लेते हैं, 2A माइनस 3A, तो मतलब इन दोनों को दिस इक्वेशन नंबर 2, ऐसा इक्वेशन नंबर 1, 2 माइनस 1 करते हैं तो कितना बन जाएगा, 3A माइनस 2A बन गया A, 4B माइनस 3B बन गया B, ठीक है, 2D माइनस D बन गया D, और इधर बच गया C माइनस 3C यानी कि बन गया ये -3C, इसकी वैल्यू मिल गई 22 माइनस 24 विच बिकम्स -2। अब सिंस a प्लस बी प्लस डी कितना है वो यहाँ से उठा सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है 10 होता है, तो a प्लस डी विल बिकम 10 माइनस सी माइनस 3C इज इक्वल टू -2, यानी कि 10 माइनस 4C इज इक्वल टू -2, तो 10 को उधर ले जाएंगे तो -4C इज इक्वल टू -12, C की वैल्यू मिल गई 3, क्यों, माइनस और माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो चलो अब अपने को एक और वैल्यू मिल गई, वो क्या मिल गई है, C की वैल्यू मिल गई है 3, हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज अपने को पता है C की वहाँ पे 3 को लगाते जाएंगे। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन अगर है तुम्हारा तो वो इसी लॉजिक पे ऑपरेट हो रहा है, ये जो ये वाला लॉजिक था a प्लस सी प्लस डी वाला, अगर तुमने वो क्रैक कर लिया तो ये सेट के अंदर कुछ भी करने को अपने पास नहीं बचा, बस अपने को खाली नंबर्स तोड़ने का काम करना है। ठीक है, सिंस 3 मिल चुका है तो अब क्या करें, ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी का क्या पता होता है, ए प्लस बी का सम कितना है, ए प्लस बी का सम हो गया, अब ए प्लस सी प्लस डी होता था 10, तो ए प्लस बी हो गया 3 और 4, यानी कि ए प्लस बी बन गया 3। अब ये जो 3 4 वाली वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन पे ऑपरेट कर लो, यानी कि यहाँ पे चलो कर ले तो ए प्लस टू बी यहाँ से मिल जाएगा, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3C कितना होता है 3 इंटू 3 9, और 4D 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 और 30 से माइनस कर देंगे यानी कि ये बन गया 5, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल, b की वैल्यू मिल गई 2, चलो b की वैल्यू 2 मिल गई तो a की वैल्यू मिल गई तुम्हें 1। ठीक है, अब हमने क्या करा, बेसिक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर करके हमने इनकी सबकी वैल्यू को निकाल लिया। अगर तुम्हें लग रहा है कि गड़बड़ वैल्यू है, कुछ मत करो, चुपचाप इनकी वैल्यू को चेक कर लो, कैसे चेक कर लो वो भी बता देता हूँ। 1 2 1 2 एंड 1 2,
चेक करने के लिए चलो मैं 2018 पे चेक करता हूँ। 2018 में इनका सम कितना बन रहा है, 3 1 जा 3, ठीक है, प्लस 4 2 जा 8, ठीक है, 8 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, यानी कि 11 और 11 22 क्योंकि 10 नंबर स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज कितना बनना चाहिए था, 2.2, यही बना है एवरेज, यानी कि परफेक्ट मेरी वैल्यूज यहाँ पे ए के लिए निकल गई हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, दिस सिमिलर थिंग हैज टू बी रेप्लिकेटेड फॉर ए बी एंड सी। बस अब आपको इक्वेशन बना बना के निकालना है। अगर आपने ये वाला पॉइंट क्रैक कर लिया है जहां पे आपने ये निकाल लिया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 10 होगी और वो क्यों होगी वो भी आप समझ गए हैं, तो आपके लिए ये सेट एकदम इजी था। अगर आप वो चीज़ को क्रैक नहीं कर पाए और एज्यूम कर करके ज़बरदस्ती की वैल्यूज निकाल रहे हैं तो आप ये सेट को क्रैक शायद गिवन टाइम फ्रेम में तो नहीं कर पाए। ठीक है, चलो एक बार बोर्ड क्लीन कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं ताकि हमें फिर से वो वैल्यूज को निकालने के लिए सीन बन जाए। चलो let's figure out for B, let's find all the values of B using similar thing which we did for the A village। तो A village में क्या होगा, सेम लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए था मैक्सिमम, फॉर A it was 10 एंड फॉर C it was 30। तो अभी 20 है, 20 के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स टेक सेम वेरिएबल्स, a plus b plus c plus d is equal to 20, यानी कि a b c and d। now that we know that this a will get of age 2 year, तो ये a इधर आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, c इधर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली d ही आएगा। क्यों, क्योंकि भाई इन तीनों का जो बचा हुआ डिफरेंस है वो d ही तो बनता है। तो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे ये 4 ईयर वाले वो मैच्योर होके बाहर हो गए, बट a same number will enroll for this particular year। वो 1 ईयर किड वो फिर से आ जाएगा ताकि ये पूरा जो सम है वो बैलेंस आउट हो सके, वो 20 बन सके। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी ऑपरेट करा देंगे, यानी कि ए बी सी और डी। क्यों, क्योंकि डी जो 1 ईयर है अब वो 2 ईयर का बन जाएगा, दिस दिस गाय विल बिकम 3 ईयर, दिस गाय विल बिकम 3 ईयर 4 ईयर, एंड वो यहाँ पे आ जाएगा इससे। अब अपने पास एक इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाली, बाकी इक्वेशंस वी कैन क्रिएट फ्रॉम यूजिंग दीज वैल्यूज। यहाँ पे एवरेज वैल्यूज पता है और एवरेज वैल्यूज में बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग 2016 का एक इक्वेशन बनाते हैं। उसमें कितना बनेगा, a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d इज इक्वल्स टू कितना है एवरेज 2, 2 का इंटू 20, क्यों 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा 40। ठीक है, एक इक्वेशन ये भी बना लेते हैं, दिस विल बी 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस d, क्योंकि d इज 1 ईयर किड। ये कितना है यहाँ पे एवरेज 2.6, 2.6 इंटू 20 यानी कि 52। अब इन दोनों को कंपेयर करने पे अपने को क्या वैल्यू मिल रही है, मतलब माइनस करने पे दिस और दिस, इक्वेशन नंबर 2 और 3 है। ठीक है, तो 3 - 2 कर रहा हूँ मैं, 3 - 2 करने पे क्या मिला, ए बी सी और -3d इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, नाउ दैट आई नो कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, यहीं पे 20 माइनस डी -3d इज इक्वल्स टू 12, यानी कि क्या मिल गया मेरे को, 20 चला जाएगा उधर, -4d एंड उधर जाने से क्या बन जाएगा, -8। तो d की वैल्यू मिल गई मेरे को 2। ठीक है, अब मेरे को d की वैल्यू 2 मिल गई, मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यूज जहां पे d अपने पास है वहां पे 2 भर देता हूँ। यहाँ पे मैंने d की वैल्यू को 2 दे दिया, d की वैल्यू को 2 दे दिया, d की वैल्यू को 2 दे दिया। ठीक है, लेट्स क्रिएट अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग 2018 की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 4 कैसे आएगा, दिस विल बिकम 3a प्लस 4b प्लस 2d प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5 से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा से भी ज़्यादा है, यानी कि 2.8 है। तो दिस विल बिकम 2.8 इंटू 20, दिस विल बिकम 56। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट्स से कि इक्वेशन नंबर 4 है, तो 4 -3 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 3 था ना, ये वाला इक्वेशन, इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम 4 - 3 a plus b plus d and c minus
4c. So this will become minus 3c. 56 minus 52, this becomes 4. ठीक है, अब क्या है, a प्लस बी प्लस डी क्या है, 20 माइनस सी है. एकदम देखो सिमिलर चीज है जो कि हम बार बार बस करते जा रहे हैं. तुमने अगर एक बार क्रैक कर लिया तो बस खत्म है. उसके बाद इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रिपीट दोज एक्सरसाइज, बार बार वही उसी को करते रहो और आपको सारी वैल्यूज देते जाएंगे. तो पेनफुल है सेट, लंबा है, बस ये लेंथी सेट है, बट कुछ ऐसा वो नहीं है जिसको मैं अटेम्प्ट करना नहीं पसंद करूंगा. लाइक आई विल बी डूइंग दिस सेट, मैं पेपर में होगा तो मैं ये अटेम्प्ट करना पसंद करूंगा बिकॉज ईजी है सेट ये. ठीक है, सो 20 माइनस फोर सी, 20 माइनस फोर सी की वैल्यू मिल गई है 4, यानी कि 20 उधर चला जाएगा तो दिस विल बिकम माइनस 4c इज इक्वल टू माइनस 16, यानी कि c की वैल्यू मिल गई 4. चलो अपने को एक इक्वेशन से और मिल गया, विच इज वैल्यू मिल गई, वो मिल गई है c की वैल्यू 4. c की वैल्यू 4. ठीक है, लिखते चल रहे हैं, c की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई. अब अपने को क्या पता था, a प्लस बी कितना है, 4 और 2 6 हटा दें, यानी कि a प्लस बी है 14. अब यही सेम वैल्यू इक्वेशन 1 के अलावा 2 3 4, तुम्हारे पास बहुत सारे इक्वेशन है, किसी भी एक वैल्यू में रख के a प्लस टू बी को कंपेयर कर लो. चलो 3 पे रख 2 पे रखते हैं. यहाँ पे कितना है 3c, 3c इज और 3 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 12 प्लस 8 कितना होता है 20 20, और 2 a प्लस टू बी भी आ गया 20. क्यों, क्योंकि 20 उधर चला जाएगा तो ये आ गया 20. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, b की वैल्यू मिल गई तुम्हें 6. अगर b की वैल्यू मिल गई है 6 तो a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 8. ठीक है, अब बस ये सारी वैल्यूज निकल गई हैं. a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 6 अपने को यहाँ पे लगानी है. a की वैल्यू 8 6 8 6 8 और 6. चेक करना है कि क्या अपनी सारी वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है. किसी भी एक को पकड़ो. चलो इस बार 2017 को पकड़ते हैं. 2017 का क्या है, 2 इंटू 1. ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस 4 इंटू 4 16, यानी कि सम कितना बन जाएगा 16 और 16 कितना होता है 32. 32 प्लस 20 यानी कि कितना बन गया 52 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि कितना आना चाहिए 2.6. 2017 का देखो 2.6 ही आ रखा है, यानी कि मैंने जो वैल्यू निकाली है 2017 के लिए एकदम सही निकाली है. चलो अब चलते हैं, सेम एक्सरसाइज करते हैं सी के लिए. ठीक है, इसको उसके लिए जगह बना लेते हैं. चलो लेट्स रिपीट द सेम एक्सरसाइज फॉर सी. नाउ फॉर सी इट इज 30, मैक्सिमम 30 पे ऑपरेट कर रहा है. फिर से वही ले लेते हैं, ए बी सी डी. अब ये जो ए बी सी है ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ए बी सी तो ये बन जाएगा डी. अब ये ए बी सी है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ए बी, और ये डी यहाँ पे आ चुका होगा, ये बन चुका होगा सी. और अपने को क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है 30. अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा लेंगे, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 2.1, 2.1, यानी कि a plus 2b plus 3c plus 4d is equals to 2.1 into 30 which becomes 63. ठीक है, एक वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं, ये क्या है 2a plus 3b plus 4c plus d is equals to कितना दिया हुआ है, ये है तुम्हारा 2.8. 2.8 की वैल्यू 2.7, सॉरी देखो यहाँ पे 2.7 है, 2.8 नहीं है. 2.7 कितना होता है 81 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक, वही लॉजिक, इन दोनों को कंपेयर करा जाए. इन दोनों को कंपेयर करने पे क्या मिला, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे अपने को मिल गया 81 में से ये गया, ये बन गया तुम्हारा 18, और यहाँ पे क्या बन गया 2a माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3d. ठीक है, is equals to 18. Since we know a plus c plus b plus d is equal to 30, so यहाँ पे मिल जाएगा 30 minus d minus 3d is equals to 18. 30 वहाँ पे चला जाएगा, that will become minus 4d is equals to minus 12, जो कि कैंसिल होने से d की वैल्यू मिल जाएगी 3. ठीक है, अब अगर आपको एक वैल्यू मिल गई है तो अब आपके लिए चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी. अब क्या है, d की वैल्यू आपको मिल गई है 3.
डी की वैल्यू को 3 यहाँ पे लगा दिया जाए। ठीक है, अब एक और इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन यूजिंग वैल्यू ऑफ 2018, 2018 का एवरेज कितना है, वो है 2.8, 2.9, 3 से कम है 2.9। ये सेम इक्वेशन बनाते हैं। अब क्या हो जाएगा, जो ए है वो 3 ईयर का किड हो चुका होगा, यानी कि 3a प्लस 4b प्लस डी वाला 2 ईयर का हो चुका है 2d, और एक नया आ गया है 1 ईयर किड, वो आ गया है c। उसका सम कितना, एवरेज कितना दिया हुआ, 2.9, 2.9 इंटू 30, यानी कि 90 और 87। ठीक है, अब क्या करा जाए, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर मेरा 4 था और ये था मेरा 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस d की वैल्यू दी थी 81, इनको माइनस करने पे क्या मिला, a प्लस b प्लस d माइनस 3c इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस डी कितना है, 30 माइनस सी माइनस 3c इज इक्वल्स टू 6, यानी कि माइनस 4c इज इक्वल्स टू माइनस 24, यानी कि c की वैल्यू भी मिल गई 4। ठीक है, आसान हो गया चीजें, सॉरी 6c की वैल्यू मिल गई 6। ठीक है, क्योंकि आपका ये क्या -24 था ना, तो ये c की वैल्यू मिल गई 6। ठीक, अब क्या करा जाए, वही पीछे वाला जो कार्यक्रम फिर से उसको रिपीट करना पड़ेगा। c की वैल्यू को लगा दी जाए, c की वैल्यू आ गई 6, यहाँ पे भी आ गई 6, यहाँ पे भी आ गई 6, यानी कि a प्लस बी कितना बच रहा है, अब a प्लस बी बच रहा है 21, इस पे c प्लस डी क्योंकि मिल चुका है। अब a प्लस बी की यहाँ से भी निकाल सकते हो, a प्लस टू बी कितना बचेगा ये देख लेते हैं। a प्लस टू बी बचेगा आपका 3c, यानी कि 3 6 जा 18 एंड 4d, यानी कि 4 3 जा 12, तो 18 प्लस 12 कितना होता है 30, 63 माइनस 30 कितना होता है 33। ठीक है, 63 माइनस 30 हो गया 33, माइनस कर लिया जाए कितना बच गया, इसको माइनस कर देते हैं, ये बन गया b, b की वैल्यू मिल गई है 12। ठीक है, अगर b की वैल्यू मिल गई 12 तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 9। कैसे, इस वाली इक्वेशन से बस निकाल लेना वैल्यू। ठीक, क्या करा फिर, वही बेसिक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा और कुछ भी नहीं करा, यानी कि यहाँ पे अपने को a और b की भी वैल्यू यहाँ पे मिलती गई। a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 12, a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 12, a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 12, 9 एंड, ठीक है। सो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि सेट में हमारे पास पूरी वैल्यूज ही क्रंच होके निकल गई है। सो सी, एवरेजेस के सेट जब भी मिलेंगे आपको जनरली वो ऐसे ही पूछता है, जहाँ पे वो एवरेज को रिड्यूस करेगा एंड यू आर सपोज टू क्रिएट अ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व लीनियर इक्वेशन। बस कुछ भी नहीं करना, सारे वेरिएबल्स लो और उसको बना बना के निकालते जाओ। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू highlight the things which is given in the question. In this there was two particular highlight. पहला, the all the villages are operating on their full capacity. The other highlight was कि कोई भी बच्चा नया बच्चा नहीं है जो एडमिशन ले रहा है, एंड एट द सेम टाइम कोई भी बच्चा मिडवे नहीं कर रहा है, वो पूरा अटेन होने के बाद जा रहा है। मतलब इफ ही इज ज्वाइनिंग एट 1 ईयर के किड, जो वही ज्वाइन कर रहा है और वो 4 साल होने पे निकल रहा है, तो वो शायद दोनों कंडीशन को बहुत ध्यान दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन प्ले ग्रुप ए, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इन 2016 व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज लेस देन 2 इयर्स, 2 ईयर से कम ईयर वाले कितने, 2 + 1, यानी कि ये और ये, यानी कि कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज 3 ईयर इन द ईयर 2017 इन द प्ले ग्रुप बी। बी के अंदर क्या पूछा, व्हाट वाज द 3 ईयर, और 2017 में 3 साल वाले कितने, ये आंसर होना चाहिए इसका 6, दूसरे का आंसर होना चाहिए 6। हाउ मेनी चिल्ड्रन लेफ्ट दिस प्ले ग्रुप इन 2018, 18 में कौन लेफ्ट किया होगा, ऐसे बच्चे जो 17 के अंदर 4 साल के होंगे, बिकॉज वो 18 में 5 साल के होंगे और उन्होंने छोड़ दिया होगा, यानी कि वो ये वाले कॉलम की बात अपने को निकालनी है। तो ये कितना है, 3 + 4 + 6, यानी कि 6 + 4 10, 10 + 3 13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए 13। ठीक है, last question, in 2019 there were two 1-year-old children in the playgroup C. Which of the following would be the average age of the children in the playgroup C in 2019? For C,
ठीक है। सी में क्या हुआ होगा, 1 साल वाला बच्चा वो 2 साल का हो चुका है, यानी कि वो बन गया है 12, ठीक है, अपॉन 6, क्योंकि 6 अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होना चाहिए। ये 3 बच्चे जो हैं ये 2 ईयर वाले, नाउ दे वुड हैव बिकम 3 ईयर किड, तो अब वो क्या बन गए 9, बिकॉज 3 बच्चे जो कि 3 साल के हैं वो बन गए 9 ईयर के, पूरा उनका जो सम है वो हो गया। अच्छा, और ये क्या है 3 9 वाले, ये अब 4 साल वाले बन गए, यानी कि 9 बच्चे हैं जो कि 4 साल वाले बन गए, ये हो गए आपके 9 बच्चे। और लास्ट में बोला हुआ है कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल वाले ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि +2 और +2, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 2 ऐड होंगे और उनका जो सब तैयार हो रहा है वो 2 है, यानी कि कितना बन गया 6 3 9 9 9 18 18 और 2 20, और ऊपर कितना सब बन गया 12, 12 और 36 कितना होता है 48, 48 में 9 ऐड करेंगे तो बन गया 57, 57 में ऐड कर दिया 2 तो बन गया 59, 59 अपॉन 20, यानी कि 59 अपॉन 20 हो गया आपका 20 का टेबल 2 टाइम्स, सॉरी हाँ 2.2 टाइम्स 2 आ गया, और 3 से थोड़ा कम यानी कि 2.95 होना चाहिए, 2 5 10 कैरी 1 2 9, हाँ यही होना चाहिए 2.95, ठीक है। That's it from this particular set, and keep practicing, and we shall be uploading couple of more DI sets, and average base set हम थोड़े और अपलोड करेंगे in coming videos, ठीक है। चलो keep practicing.